بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum dear student. Chapter number 9, exercise, multiple choice. Choose the correct option. A dynamic equilibrium. We have learned that in dynamic equilibrium, both the rate of a forward reaction and reverse reaction is continued at the same time. So therefore, the option number D is correct. In given four options, the option number D is correct. Come to the next question. A reversible reaction have the following characteristic except. You have four options. You will find out the option which are not related with reversible reaction. So let's study the properties of a reversible reaction. They proceed in both directions, it is correct. They never complete, it is correct. Product do not form reactant again. This property doesn't belong to the reversible reaction. So the option number C is the correct option. Come to the next MCQs. The equilibrium constant expression for the given reaction is, you have equation in which 1 mole of nitrogen combined with 1 mole of oxygen to produce 2 mole of nitric oxide. So what will be the case expression for the given reaction? So I have told you that equilibrium constant is a ratio of the concentration of the product to the concentration of the reactant. It means that concentration should be written in the numerator form at the top and reaction should be written at the bottom in denominator forms. So in a given option, option number D is correct. So mark it. Come to the option number 4. The equilibrium constant is, आपसे क्वेश्चन किया गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या चीज़ है. So we have studied that equilibrium constant is a ratio of the two rate constants. So the option number C is correct. Number 5. When the value of Kc is very small, it shows that. So you have four options. Find out which option is correct. So we have learned that if the value of Kc is very small, so it shows that the reaction will go in the reverse direction. So it means option number B is correct in a given option. Come to the question number 6. For which reaction the Kc will have no units? You have four options and you will find out that which reaction have no unit of Kc. Let's count the number of mole in each reaction. In option number A, 4 mole of ammonia react with 5 mole of oxygen to produce 4 mole of nitric oxide and 6 mole of water molecule. Add the number of mole on both end sides of the reaction. 4 plus 5, 9 mole are present on the reactant sides. 4 plus 6,
10 mole are present on the product hand side. It means 9 mole produce 10 mole product. 1 mole is produced in the X amount. So this equation possesses a unit. Come to the next option. 1 mole of nitrogen react with 3 mole of hydrogen to produce 2 mole of ammonia gas. It means then that on the reactant hand side there are 4 mole, and on product hand side they produce 2 mole of ammonia. So 2 mole of deficiency are present on the product hand side. So this equation also possesses a unit. So that is also incorrect. Come to the option number C. 1 mole of nitrogen react with 1 mole of oxygen to produce 2 mole of nitric oxide. Count the number of mole on both hand sides. 1 mole of nitrogen plus 1 mole of oxygen, 2 mole, produce 2 mole of nitric oxide. So the number of mole are equal in a given reaction. So they will cancel out each other. So the option number C is correct answer for statement number 6. Come to the statement number 7. When the value of Kc is very large, it shows that. So I have told you when the value of Kc is very large, so it means the reaction will move in the forward direction. So the option number C is correct in a given option. Come to the statement number 8. Active mass means. We have also learned active mass in the law of mass sections. Active mass means concentration of the reactant and product in mole per decimeter cube for a dilute solution. So in a given options, option number D is correct. Concentration of reactant and product in mole per decimeter cube in a dilute solution. That option is correct. Come to the statement number 9. For a reversible reaction, the Kc expression is given. You have 4 options. Which option belongs to this expression? So if you look to the options, I think option number D is correct. Option number D is correct answer, which match to the statements. Come to the statement number 10. The reaction between phosphorus trichloride and chlorine gas will produce phosphorus pentachloride. So the reaction for statement number 10 is phosphorus trichloride with chlorine gas, it forms phosphorus pentachlorides. So the question is the unit of Kc for this reaction. So in this reaction you will find out the unit of Kc. So count the number of mole on each side. In a given reaction, 1 mole of phosphorus trichloride with 1 mole of chlorine gas to produce 2 mole of phosphorus, 1 mole of phosphorus pentachlorides. It means 2 mole are present on the reactant side and 1 mole are present on the product side. It means there is 1 mole of deficiency on the product side. Therefore, the unit of Kc will be in negative and having 1 mole of deficiency. So the option number B is correct answer for this statement. Short question number 10. Effect of temperature on the value of equilibrium constant, which is known by a symbol Kc. The value of Kc
is constant at a constant temperature, but it should be affected by increasing or decreasing temperature. By increasing temperature, the value of Kc will be also increasing, but by decreasing temperature, the value of Kc will be decreasing. In endothermic reaction, the value of Kc will be increasing by increasing temperature, while in exothermic reaction, the value of Kc will be decreasing by decreasing temperature. अब आते शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते। जितनी भी लॉन्ग क्वेश्चन है उनको सारे लॉन्ग क्वेश्चनों को हमने लेक्चर के दौरान डिस्कस किए हैं, तो आप उसको वहाँ से देख लें। चैप्टर नंबर 9 शॉर्ट क्वेश्चन। Short question number first, second and third and fourth, we have discussed the short question in my lectures. So you study these short question in a lecture. Come to the short question number 5. Short question number 5 में हमसे क्या मांगा गया है? Short question है relate the active mass with rate of a chemical reaction. एक्टिव मास को भी हमने लॉ ऑफ मास के अंदर पढ़ा है, लेकिन इसको दोबारा सुन ले। एक्टिव मास मीन concentration of the reactant and product in mole per decimeter cube for a dilute solution, and is shown by a square bracket. In a simple word, active mass means that mass which take part in chemical reaction and to form the product. Come to the rate of a chemical reaction. What is mean by rate of a chemical reaction? Rate of a chemical reaction mean change in the concentrations of the reactant and product in per unit time is called a rate of chemical reactions. इसकी दूसरी डिफिनीशन क्या होगी? The decrease or increase in the concentration of the reactant or product in a per unit time is also called a rate of a chemical reaction. मतलब क्या हुआ, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर जो रिएक्टेंट होते हैं या प्रोडक्ट होते हैं उसकी कंसंट्रेशन के अंदर जो इंक्रीज़ आता है या डिक्रीज़ आता है टाइम के साथ साथ, इसी चेंज को क्या कहते हैं? इसी चेंज को रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन को आप बुक से देख ले, मैं इसका डेटा लिख रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों ने फाइंड आउट करना होगा, केसी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। आपको मुख्तलिफ़ कंसनट्रेशन दी है, एक रिएक्शन दिए है जिसमें आपको मुख्तलिफ़ सब्सटेंस की कंसनट्रेशन दी है। रिएक्शन में आपको क्या दी है? द रिएक्शन इज़ बिटवीन द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करता है तो ये प्रोडक्ट में बनाता है अमोनिया गैस बनाता है। आपको क्वेश्चन के अंदर नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन दी है, उसकी वैल्यू क्या है? उसकी वैल्यू है हमारे पास 0.602 मोल
पर डेसीमीटर क्यूब। इस तरह आपको हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी है, वो कितनी है 0.420 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इस तरह प्रोडक्ट हैंड साइड पे आपको कंसंट्रेशन दी है अमोनिया गैस की। वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 0.113 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आपको तीनों कंसंट्रेशन दी है। आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना होगा, आप लोगों ने इसके लिए कैसी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये जो रिएक्शन है इसी को आप लोगों ने कैसी फॉर्म एक्सप्रेशन में लिखना होगा। इसका कैसी फॉर्म एक्सप्रेशन कैसा होगा, आइए इसको लिखते हैं। अमोनिया है जो प्रोडक्ट है, इसको ऊपर लिखेंगे। हमारे पास नाइट्रोजन है, इसको 1 मोल मौजूद है, इसका कंसंट्रेशन 1 मोल है। हाइड्रोजन है, ये कितने मोल मौजूद है 3 मोल मौजूद है। ये इसका कैसी फॉर्म एक्सप्रेशन हो गया। अब आए इसी इक्वेशन के अंदर जो ऊपर कंसंट्रेशन दी है, जो नंबर ऑफ मोल दी है, उसके अंदर पुट करते और कैसी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अमोनिया की कंसंट्रेशन कितनी दी है 0.113 मोल। अब क्वेश्चन के अंदर अमोनिया के कितने मोल है 2 मोल है, यहाँ पर 2 लगा दो। उसके बाद नाइट्रोजन की तरफ आते हैं। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है 0.602। कितने मोल मौजूद रिएक्शन के अंदर 1 मोल है यहाँ पर। इस तरह हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी दी है वो 0.420। कितने मोल मौजूद है 3 मोल मौजूद है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 0.113 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऐसे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 0.128। नाइट्रोजन को अपनी जगह पे छोड़ दे। उसके बाद हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है कितनी है वो 0.420। इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या आएगी, हमारे पास वो आएगी 0.074। अब आज इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ज़ीरो 0.602 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.074 के साथ तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 0.0447। अब 0.128 को डिवाइड करेंगे 0.0447 पे तो हमारे पास जो केस वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 0.286। ये होगी आपका न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, क्वेश्चन क्या है, स्टेट कंडीशन नेसेसरी फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। इसी शॉर्ट क्वेश्चन को भी हमने लेक्चर के दौरान डिस्कस की है, आप इसको वहाँ से देख लें। अब आते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं।
शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या मांगा है हमसे, कह रहे राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको कुछ रिएक्शन दी है, आप लोगों ने इसको केसी फॉर्म एक्सप्रेशन में लिखना होगा। 3 रिएक्शन दी है। पहला रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस, दूसरा रिएक्शन आपको दी है फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और तीसरा रिएक्शन आपको दी है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। मैं इसमें सिर्फ एक रिएक्शन करूँगा, बाकी आप ख़ुद प्रैक्टिस कर लें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप भी सीख जाएंगे इसको। तो जो पहला रिएक्शन दिए है वो यही वाला रिएक्शन दिए है। चलो मैं सेकंड नंबर रिएक्शन कर लूँगा। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस के साथ। प्रोडक्ट में क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट में बनाते हैं 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल। आप लोगों ने इस रिएक्शन को सिर्फ केसी फॉर्म में लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, जो प्रोडक्ट है इसको ऊपर लिखेंगे, तो इसमें प्रोडक्ट कौन से है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर लिखेंगे। कितने मोल मौजूद है, 2 मोल मौजूद है, और जो रिएक्टेंट है उसको नीचे लिखेंगे। तो रिएक्टेंट में कौन कौन से रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन है, कितने मोल मौजूद है, 2 मोल। ऑक्सीजन के कितने मोल मौजूद है, 1 मोल, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, इसी इक्वेशन का केसी फॉर्म हो गया। बाकी जो 2 रिएक्शन है इसको आप खुद कर ले। ये हो गया हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब बात नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। वो भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरह। आइए इसको शुरू करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 में आपको मुख्तलिफ सब्सटेंसों की कंसनट्रेशन दी है। जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन जो रिएक्शन है वो मुख्तलिफ है। रिएक्शन क्या है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन करता है ऑक्सीजन गैस के साथ, और बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाता है। आपको ये रिएक्शन दिया है, आपको इस रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन दी है, सल्फर डाइऑक्साइड की गैस की जो कंसनट्रेशन दी उसकी वीडियो हमारे पास क्या है, वो है 1.50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इस तरह आपको ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन दी है वो कितनी है, 1.25 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की जो कंसनट्रेशन आपको दी है वो कितनी है, 3.50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, केसी वीडियो को आप लोगों ने फाइंड करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन को केसी फॉर्म एक्सप्रेशन में लिखेंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, इसको ऊपर लिखेंगे। ये कितने मोल मौजूद है, 2 मोल। अब रिएक्टेंट में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, कितने मोल मौजूद है, 2 मोल। ऑक्सीजन कितने मोल मौजूद है, 1 मोल, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया इसका केसी फॉर्म। अब बात है ना, अब इस इक्वेशन के अंदर
हमने वैल्यू पुट ऑफ करनी होगी, जो हमें कंसनट्रेशन दी है इसको पुट ऑफ करेंगे। आइए वैल्यू पुट ऑफ करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की कितने मोल आप दी है? 3.50। नंबर फॉर्मूला पास 2 है। इसके बाद आते हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, कितनी कंसनट्रेशन है? 1.50। लेकिन जो नंबर फॉर्मूला कितनी है वो 2 है, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे। ऑक्सीजन की जो मोल कंसनट्रेशन कितनी है? वो 1.25। वैल्यू हमने लगा दी है। अब आइए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 3.50 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास इससे जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है हमारे पास? वो आती है 12.25 आती है। इसके बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 1.50। 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है कितनी आती है? होती है 2.25। और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी है? वो है 1.25। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की तो हमने सिंप्लीफिकेशन की है। लेकिन जो रिमेनिंग 2 रिएक्टेंट है तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी? वो आएगी 2.8125। तो जो केस वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी? 4.36। ये होगा इसका आंसर। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.